Good afternoon. Good afternoon, my dear students. Welcome to Gradeup classes once again. Myself, Ankur Tomar. And in today's session, I am going to discuss with you second part of basic aptitude of boards and streams. In yesterday's session, I have discussed with you first part of boards and streams, and in first part of boards and streams, we have discussed what do we mean by the term downstream, what do we mean by the term upstream, how do we calculate the speed of a boat in downstream and upstream directions, how do we calculate individual speed of boat and individual speed of current if speed of downstream and upstream direction is given to us. So we have discussed basic concept of basic formulae of boards and streams in yesterday's session, or first part of this mini series that is based on boards and streams. So in continuation to the previous class, today also I am going to discuss with you some basic concept and some basic questions based on boards and streams. तो जिस तरह से कल वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिमिलरली today's session also I am going to discuss with you some important questions of boards and streams which have been asked in previous year entrance exams, my dear students. So please listen to me very carefully and try to understand the explanation of each question very carefully. उससे पहले let's take a look on the ongoing batches on Gradeup. So first of all, मैंने कल भी आपसे बोला था कि 2 दिन के लिए एक ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं. यू कैन अवेल फ्लैट 50% ऑफ on Gradeup Super live courses plus mock test by using code HOPE50 HOPE50. And today is the last day. Today is the last day of this amazing offer. So grab this offer as soon as possible, my dear students. Today is the last day. और इस ऑफर में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT, सेट PBA, DUJET and NC HM exam, then you can avail flat 50% off on Gradeup Super subscription of these courses. Also, a comprehensive course for BBA and IPM IM 2022. चलिए, तो enrollments are on for this batch. To join this batch as soon as possible if you are targeting next year BBA and IPM IM 2022, my dear students. So join this batch as soon as possible. चलिए, तो let's discuss first question of today's session, that is question number 1. And as I told you, all questions are applications of concept of boards and streams which we have discussed in yesterday session. Secondly, जिन स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं किए हैं, कल वाला सेशन नहीं देखा है, तो प्लीज गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेडअप. आपको ग्रेडअप के यूट्यूब चैनल पर बेसिक एप्टीट्यूड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पार्ट 1 के नाम से कल वाली क्लास मिल जाएगी. तो एंड प्लीज try not to miss even a single session of these mini series, my dear students. These mini series helps you a lot in your preparation, क्योंकि इन mini series में हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के मिनी सीरीज की भी बात करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आई थिंक वी कवर ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दीज मिनी सीरीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो ट्राई नॉट टू मिस इवन अ सिंगल सेशन ऑफ दीज मिनी सीरीज, माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. और जैसा मैंने बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, और उससे पहले प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स विद इन योर ग्रुप, माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले पाए. ठीक है, चलिए, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. एंड बिफोर देन दैट लेट मी टेक अ साइड. चलिए, तो लेट्स डिस्कस each question one by one in detail manner. Question number 1. So question number 1 says that
The speed of a boat in still water is 13 km per hour and the speed of the stream is 6 km per hour. So my dear student, if speed of a boat in still water is 13 km per hour and speed of the stream is 6 km per hour, we can find out the speed of boat downstream and speed of boat upstream. So what will be the speed of boat downstream? So speed of boat downstream will be 13 plus 6, that is 19 km per hour, and speed of boat upstream will be 13 minus 6, that is 7 km per hour. Am I right? The speed of boat in still water is given as 13, speed of stream is given as 6 km per hour. So speed of boat downstream will be 13 plus 6, that is 19 km per hour, and speed of boat upstream will be 13 minus 6, that is 7 km per hour. Further, it is given that it takes 6 hours more to sail in upstream than in the downstream. Find the distance. So my dear students, tell me what will be the time taken. What will be the time taken to cover a distance d in upstream direction? D by 7. What will be the time taken to cover the same distance in downstream direction? D by 19. And what is the difference between these two timings? Difference between these two timings is given as 6 hours. Single equation, single variable. Single equation, single variable. And from this equation, my dear students, we can easily find out the value of distance d. चलिए देख लेते हैं क्या आंसर निकल के आएगा. तो ये हमारा हो गया 97d minus 7d, that is 12d upon 19 into 7 is equals to 6. So what will be the value of distance d? 6 into 19 into 7 divided by 12. Am I right? So 19 5 is 95, 66.5. So option B must be the correct answer of question number 1, my dear students. आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. तो उसने बोला कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 13, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना था? 6. तो यहां से we can find out speed of boat downstream and speed of boat upstream. Downstream कितना होगा? ऐड कर देंगे 13 plus 6, that is 19. अपस्ट्रीम क्या होगा? माइनस कर देंगे, तो 13 minus 6, that is 7. से डिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करना था उसको हमने डी ले लिया. तो what will be the time taken to cover a distance d in upstream direction? D by 7. What will be the time taken in downstream direction? D by 19. और इन दो टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस हमें कितना गिवन था? 6 hours. तो d by 7 minus d by 19 is equals to 6, and from this equation we can easily find out the value of distance d, that is 66.5. So option B must be the correct answer of question number 1, my dear students. That's why answer is option B. Let's discuss next question, question number 2 of today's session. और किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आस्क. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहले देखना है क्या पूछा है और फिर हमने 100% एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर करना. अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. चलिए तो 2 पॉइंट हमारे पास थे बच्चों ए टू बी, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन था? 12 किलोमीटर्स. तो अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर्स. फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 15 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रीच बी. ठीक है, तो फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 15 minutes. From A, it travels 4 km downstream in 15 minutes and the remaining 8 km upstream to reach B. If the downstream speed is twice as high as the upstream speed, what is the average speed of the weight for the journey from A to B? सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ
कि सर फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये हमारा हो गया। और जो नेक्स्ट वाला 8 किलोमीटर है ये वो ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम, ठीक है। तो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रीच बी। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज हाई एज इज ट्वाइस एज हाई एज अप स्ट्रीम स्पीड। आप मेरे को ये बताओ, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसकी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में आप देखोगे तो उसने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की 15 मिनट्स में। तो व्हाट विल बी द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस इन 15 मिनट्स यानी कि 15 बाई 60 आवर्स, तो 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम direction? What will be the speed of boat in upstream direction? It is given that downstream speed is twice as high as upstream. तो डाउनस्ट्रीम अगर 16 है तो अपस्ट्रीम कितना हो गया हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट फॉर द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पहले बच्चों? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया मेरा 4 + 8 दैट इज 12, और टोटल टाइम टेकन, तो ए से लेके पॉइंट सी तक का टाइम कितना था? ए से लेके पॉइंट सी तक का टाइम था हमारा 15 मिनट्स, और 15 बाई 60 1/4 आवर्स। और बी से लेके सी तक का टाइम हमारा कितना था? तो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर, बी से लेके सी तक की स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगा होगा 1 आवर। एम आई राइट? यहीं से हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 5/4, ये हमारा हो गया 48/5। 48/5 इज 9.6 किलोमीटर पर आवर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगेन ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सर वी ऑल नो हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है भाई। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 12 किलोमीटर। अब इसमें 12 में से पहले 4 किलोमीटर उसने डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया इन 15 मिनट्स, तो यहां से उसका निकल के आएगा स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना था 4 किलोमीटर, टाइम था 15 मिनट्स, तो 15 बाई 60 1/4 आवर्स। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन 16 किलोमीटर पर आवर। एंड इट इज मेंशन इन द गिवन क्वेश्चन दैट if the downstream speed is twice as high as the upstream speed। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी हमारी 16, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी हमारी 16 का हाफ दैट इज 8। और उसने जो बाकी के 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी के 8 किलोमीटर के लिए टाइम कितना, उसको कितना लगेगा 1 आवर। एंड वी ऑल नो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 12 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज फर्स्ट 4 किलोमीटर में कितना टाइम था 1/4 आवर्स, और नेक्स्ट 8 किलोमीटर में कितना टाइम था 1 आवर। तो टोटल टाइम टेकन इज 1/4 + 1 दैट इज 5/4 आवर्स। तो व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड 48/5 दैट इज 9.6 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन बी must be the correct answer of question number 2 my dear students। am I right? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Abhiraj rowing at the rate of 6 km per hour in still water. He takes 5 times as much in going 40 km upstream as in going downstream. Find the speed of the stream। इसको भी हम बड़े स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सुनिए ध्यान से। तो स्पीड ऑफ अभिराज इन स्टिल वाटर, so speed of A in still water
स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर कितना था हमारा ये 6 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी गिवन है हमें. से स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर. तो यहां से वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ ए डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ ए अप स्ट्रीम. तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ अभिराज in downstream case 6 plus x, and what will be the speed of Abhiraj in upstream direction, that is 6 minus x. Am I right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 6 किलोमीटर पर आवर. से स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर. तो what will be the speed of a in downstream directions, my dear students, that is 6 plus x, and what will be the speed of a in upstream direction, that is 6 minus x. Am I right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, अब उसने बोला he takes 5 times as much time in going 40 kilometer upstream as in going downstream. First of all, tell me the time taken to travel 40 kilometer in upstream, 40 upon 6 minus x. And what will be the time taken to travel 40 km in downstream direction, that is 6 plus x. And it is also given that the time he takes 5 times as much time in going 40 km upstream than downstream. Upstream वाला जो टाइम है ये डाउनस्ट्रीम के टाइम का कितना था 5 times. Am I right? सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, और यहाँ से बड़े स्मूथली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वही हमें कैलकुलेट करके बताना. तो 40 से 40 कैंसिल आउट, तो 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 6 जा 30 माइनस 5x. तो यहाँ से 6x हमारा कितना आ गया 24. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 24 अपॉन 6, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत आसान क्वेश्चन था, और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स उसी पर बेस्ड हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन. सेकेंडली, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हमारा हो सकता है. मैं तो फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज को लिखता हूं. अदरवाइज दिस इज अ वन लाइनर क्वेश्चन. हाउ दिस इज अ वन लाइनर क्वेश्चन? माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि सर 40 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रहा है. इनकी डिस्टेंस दोनों केस में कैसा है? हाँ जी बच्चों, डिस्टेंस दोनों केस में कैसा है? बोलो सर, डिस्टेंस हमारा दोनों केस में था कांस्टेंट. एम आई राइट? और हम सब जानते हैं इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एम आई राइट? We all know that if distance is constant, speed and time are inversely proportional to each other. Am I right? तो downstream speed upon upstream speed equals to अपस्ट्रीम वाला टाइम अपॉन डाउनस्ट्रीम वाला टाइम. और अपस्ट्रीम वाला टाइम क्या था डाउनस्ट्रीम वाले टाइम का 5 टाइम्स था. ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन है. तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, दैट इज 6 प्लस x. What will be its speed in upstream direction, that is 6 minus x. So 6 plus x upon 6 minus x is equals to 5. तो डायरेक्टली हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो we all know if distance is constant then speed and time are inversely proportional to each other. Or st upon su equals to tu upon dt. Am I right? So what will be the value of x, speed of stream? 4 km per hour. So option C must be the correct answer of question number 3, my dear students. Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड में. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा था फोर्थ में. पहले पढ़ो ध्यान से सब लोग. क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, देन विल आंसर क्वेश्चन नंबर 4. A person can cover a distance of 60 km in upstream in 5 hours. चलिए, so he can cover a distance of 60 km in upstream in 5 hours. From this statement, my dear students, we can calculate speed of men upstream. तो what will be the speed of men upstream? Distance कितना था 60, टाइम कितना था 5 hours. तो 60 by 5 that is 12 km per hour. Am I right?
A person can cover a distance of 60 km in upstream in 5 hours. So what does it mean? It means speed of man in upstream direction is equals to 60 by 5, that is 12 km per hour. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं. Speed of boat in still water is 7 times of that of the current. अब स्पीड ऑफ मैन अपस्ट्रीम कितना था? 12. अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम हमारा होता है स्पीड ऑफ बोट इन, ठीक है, क्या होता है हमारा अपस्ट्रीम हमारा होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, जो कि मुझे कितना गिवन था? 12. ऑल्सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज x इज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ करंट. तो x अपॉन y मुझे कितना गिवन था? 7/1. ठीक है, तो 12 को 7/1 की रेशियो में डिवाइड करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y that is the speed of water. So 7 plus 8 1.5, so 10.5 and 1.5, am I right? 10.5 and 1.5, am I right? Now we have to find out what is the total time required. What is the total time required for boat to cover 20 km in upstream and come back on the starting point? So what does it mean? It means we have to calculate total time taken by him to row a distance of 20 km upstream and 20 km डाउनस्ट्रीम. तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? 20 अपॉन क्या थी उसकी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड? 12 किलोमीटर पर आवर, 20 अपॉन 12. और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? डाउनस्ट्रीम क्या होता है? x प्लस, जस्ट अ मोमेंट, छोटी सी गलती मैंने कर दी. ये x माइनस वाई हमें 12 गिवन था, ना कि x प्लस वाई. तो 12 को 7:1 की रेशियो में डिवाइड हमने कैसे कर दिया? गलत. तो कैसे करेंगे? x माइनस वाई था ना हमारा 12, तो x माइनस वाई मेरा 12 था और x मुझे कितना गिवन है? x मुझे कितना गिवन था? x मुझे गिवन था 7y. तो यहां से पहले हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. x की जगह 7y पुट कर दूंगा तो y कितना निकल के आएगा? 2, और y 2 है तो x कितना हो गया? 14. ठीक है, अब होगा आंसर. चलिए, तो what will be the time taken by him to row a distance of 20 km upstream? 20 by 12. And time taken by him to row a distance of 20 km downstream में स्पीड क्या होगी? 14 plus 2 that is 16, तो 20 by 16. सॉल्व कर दो. तो ये मेरा हो गया 5 by 3 plus 5 by 4, am I right? तो ये आ गया प्यारे बच्चों 12. 20 plus 45 by 12, 45 by 12, 45 by 12, 3 hours. जस्ट अ मोमेंट, 3 hours तो कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारा. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. सॉरी 15 आएगा ना ये. तो 35 by 12, 35 by 12, तो 12 to जा 24, 24, 24, 11, 2 hours 55 minutes, 2 hours 55 minutes. So option D must be the correct answer of question number 4. Am I right? So option D must be the correct answer of question number 4. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था. तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला कि a person can cover a distance of 60 km in upstream in 5 hours. तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन 60 by 5 that is 12. और अपस्ट्रीम हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ रिवर. सो x माइनस वाई कितना था? 12. फर्दर it is mentioned in the given question that speed of boat in still water is 7 times of that of the current. So speed of boat in still water is 7 times of that of the current. From first and second statement we can find out the speed of boat in still water and speed of stream. तो speed of boat in still water कितना आया था हमारा? 14 km per hour. और speed of stream मेरा कितना आया था? 2.
तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी 12 गिवन था। यहाँ से हम स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम भी कैलकुलेट कर सकते हैं 14 + 2 दैट इज 16। तो दोनों केस में हमें स्पीड पता है, दोनों केस में डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हम माय डियर स्टूडेंट्स दोनों केस में टाइम कैलकुलेट करके बता सकते हैं एंड वी ऑल नो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा 20/12, स्पीड ऑफ मैन अप स्ट्रीम था 12, और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा 20/16, स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम हमारा था 14 + 2 दैट इज 16। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन 2 hours 55 minutes, 2 hours 55 minutes। ऑप्शन डी must be the correct answer of question number 4. Am I right? I hope question number 4 is now clear to all of you. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बट उससे पहले एज आई टोल्ड यू a score-up crash course for BBA and Hotel Management 2021. So enrollments are on for this batch. Enrollments are on for this batch. So join this batch as soon as possible, my dear students. Join this batch as soon as possible, my dear students. चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी केयरफुली। बट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्या वो पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो क्या मेंशन था हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 5। अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 150 मिनट्स। अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 50 मिनट्स। फिर से वही, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है इन 150 मिनट्स। 150 मिनट्स हमारा हो गया प्यारे बच्चों 1 hour 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स में हमारा होता है 50/60, तो 11/6। एम आई राइट? तो 180/11 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट? देखना भाई, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की 150 मिनट्स में। तो बेसिकली 150 मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 150 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। अरे तो ये क्या लिख दिया मैंने, 150 मिनट्स हैं तो 30/150/60 आएगा ना, तो ये हमारा हो गया 60/5, 12 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट? हाँ जी बच्चों देखना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है इन 150 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम हमारा आ गया 30/150 मिनट्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, तो 150/60। तो 30 × 60/150 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इज 25% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना कैलकुलेट किया था हमने 12, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ करंट। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ करंट? इट इज मेंशन दैट स्पीड ऑफ करंट इज 25% और 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। तो कितना था स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। तो स्पीड ऑफ करंट कितना होगा 1/4 ऑफ 12 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट? अब उसने पूछा तो यहां से हम स्पीड ऑफ बोट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट? तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम x - y कितना है 12, y कितना है 3, तो x कितना होगा 15। एम आई राइट? एम आई राइट? हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 12.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हमें कैलकुलेट करना था कितना टाइम लगेगा बोट को 12.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में।
तो डिस्टेंस इज 12.6 और क्या होगा स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या होगा बोट प्लस करंट 15 प्लस 3 दैट इज 18, तो 12.6 अपॉन 18 आवर्स, 12.6 अपॉन 18 आवर्स, चाहो तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12.6 इंटू 60 अपॉन 18, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, तो 0.776 42 मिनट्स, 42 मिनट्स ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा। तो उसने बोला अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 150 मिनट्स, तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कितना निकल के आएगा हमारा 30 अपॉन 150 by 60 that is 12 किलोमीटर पर आवर। If the speed of the current is 25% of the speed of boat in upstream, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम था 12 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ करंट है वो इसका 25% है, वो इसका 1/4 है, तो स्पीड ऑफ करंट कितना हो गया 12 का 1/4 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम पता है, स्पीड ऑफ करंट पता है, तो यहां से हम बोट की इंडिविजुअल स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना था 15, तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना होगा 15 प्लस 3 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने पूछा हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 12.6 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 12.6, टाइम टेकन कितना है, सॉरी स्पीड कितनी थी बोट की डाउनस्ट्रीम में 18, तो कितना टाइम लगेगा 12.6 अपॉन 18 आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आई मल्टीप्लाइड विद 60, तो 12.6 into 60 upon 18, तो 42 minutes is the correct answer of question number 5। फिर से मैं बोलूंगा आसान क्वेश्चन था, जनरली बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से हम इसी तरह के क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो अगर आप कोई सी मिस्टेक नहीं करते हैं तो बड़े स्मूथली वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जाते हैं, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वो क्या करने को बोल रहा है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैलकुलेट करेंगे फटाफट। हाँ जी बच्चों बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था उसने। पढ़ो ध्यान से, बताओ क्या आंसर आएगा 6 का। इन क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला हमसे टू बोट्स एट अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो टुवर्ड्स अपोजिट रिवर बैंक परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, दे मेट 600 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, both took a break of 5 minutes after reaching the bank and then started to return back to their original river banks. They made 400 meter away from the other end on their end journey. What is the width of the river? देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछे, पहले क्वेश्चन समझ लो कर तुम देंगे। तो मानो ये रिवर ले लो हमारी, ठीक है, ये ले लो रिवर, ठीक है, जिसकी मुझे विड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं पॉइंट ए, यहां से पहली बोट चलती है, और ये ले लेते हैं पॉइंट बी, यहां से दूसरी बोट चलती है। ठीक है, चलिए तो टू बोट्स एट अपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो टुवर्ड्स अपोजिट रिवर बैंक परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। दे मेट 600 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड। चलो मानो तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन पहली बार वो मिली 600 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, तो यहां से मानो चली थी B1 इस तरफ, और यहां से चली थी मानो B2 इस तरफ, और पहली बार वो कहीं भी ले लो, मानो यहां पर मिली M1, ये था मीटिंग पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक 400 मीटर। एम आई राइट? चलिए फिर उसने बोला बोथ टू
दे मेट 600 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, ठीक है, यहाँ पर वो मिली। बोथ टुक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर रीचिंग द बैंक, ठीक है। फिर B1 यहाँ चली गई, B2 यहाँ चली गई, दोनों 5-5 मिनट तक रुकी। एंड दे स्टार्टेड टू रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल रिवर बैंक। दे मेट 400 मीटर अवे फ्रॉम द अदर एंड ऑन देयर एंड जर्नी। जब वो वापस आ रही थी तो वो दूसरे एंड से कहां पर मिली, 400, सॉरी ये 600 था, सॉरी ये 600 था, ठीक है। तो सेकंड केस में कहां मिली, वो यहां पर ले लो, मानो यहां पर मिली N2 पर। ये डिस्टेंस कितनी गिवन थी हमें, 400, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करके बतानी है विड्थ ऑफ द रिवर। तो बेसिकली M1 M2 के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, T। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, D + 1000, एम आई राइट। तो आपको D + 1000 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, एम आई राइट। क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्वेश्चन क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पर पहली बात तो एक मैं ये क्लियर कर दूं कि यहां पर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना बच्चों, इस केस में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना हमारा, वो नलीफाई हो जाएगा हमारा। कैसे हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम नलीफाई, वो ध्यान से सुनो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस तरह से हमारा नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि जब मैं B1 और B2 की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड लेकर चलूंगा, जब मैं B1 और B2 की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड लेकर चलूंगा, तो अगर मैं A to B डाउनस्ट्रीम लेकर चलूं, अगर मैं A to B डाउनस्ट्रीम लेकर चलूं, तो B1 की स्पीड क्या होगी, x - y। एम आई राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। या B1 + y ले लो। B2 की स्पीड क्या होगी, B2 - y। तो B1 और B2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब हम ऐड करेंगे ना, तो +y और -y क्या हो जाएगा, +y और -y हो जाएगा, कैंसल आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस केस में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी है उसका तो कोई रोल नहीं होगा। क्लियर। चलो फिर तो इस तरह का क्वेश्चन, नॉर्मल TSD का क्वेश्चन हमारा आ गया, सोल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, हम जानते हैं कि दो लोग अगर एक साथ कहीं से चलते हैं और कहीं भी मिलते हैं, तो वहां तक आने में उनको टाइम क्या लगता है, सेम। एंड इफ टाइम इज सेम, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट से हम बड़े स्मूथली विड्थ ऑफ द रिवर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कम, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। चलिए, तो उसने बोला हमसे कि चलिए, तो पहली बार वो कहां मिलेंगे, यहां पॉइंट पर मिले, ठीक है। यानी कि जितना टाइम लगा B1 को यहां से यहां तक जाने में, उतना ही टाइम लगा B2 को यहां से यहां तक जाने में, एम आई राइट। And if time is same, speed and distance are directly proportional to each other. तो B1 की स्पीड S1 ले लो, B2 की स्पीड S2 ले लो, तो S1 अपॉन S2 कितना हो गया, 600 अपॉन D + 400, एम आई राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि पॉइंट A से B1 चला, पॉइंट B से B2 चला, और वो रास्ते में मिले पॉइंट M1 पर, जो पॉइंट A से कितनी दूर था, 600 मीटर। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें समझने वाला वो ये कि सर इस केस में हमारा जो स्पीड ऑफ करंट होगा ना, वो नलीफाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बोट के केस में अगर मैं डाउनस्ट्रीम वाला केस लेकर चल रहा हूं, तो दूसरे वाली बोट के केस में डेफिनेटली अपस्ट्रीम वाला केस होगा। और अगर हमें इन दोनों की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर हम इन दोनों की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो नलीफाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, नलीफाई। ठीक है, चलिए चलो आगे चलते हैं। अब मैं चलो यहां मिले पहली बार, अब यहां पर मिलने के बाद दोनों अपने अपने एंड पर गए, 5 मिनट वेट किया, और फिर वो कहां मिले, फिर वो मिले इस पॉइंट पर। फिर से वही चीज, यहां से लेकर M1 से लेकर M2 तक आने में फिर से दोनों को टाइम क्या लगा, सेम। और टाइम सेम लगा तो फिर से स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। B1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो B1 यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां तक आई, एम आई राइट। तो B1 ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, D + 400 + 400, तो D + 800। और अगर आप B2 की बात करोगे, तो B2 हमारी यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां आई, तो 600 + 600 + D, तो D + 1200, एम आई राइट।
ये हमारी होगी इक्वेशन 2। बोलो सबको क्लियर है नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम डायरेक्टली डिस्टेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दोनों स्पीड का रेशियो है, दोनों को इक्वेट करा दो, आंसर आ जाएगा। तो 600 अपॉन डी प्लस 400 इज इक्वल्स टू डी प्लस 800 अपॉन डी प्लस 1200। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। इसके बाद आई सजेस्ट यू, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, नहीं तो हम ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस की हेल्प अगर हम ले लेते हैं तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, d प्लस 1000 हमें कैलकुलेट करना था, d प्लस 1000 हमें कैलकुलेट करना था। तो d प्लस 1000 अगर मैं 1000 ही ले लूं तो d जीरो हो गया। क्या d जीरो हो सकता है? देख लेते हैं। d जीरो तो ये आएगा 3/2, नहीं d जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो C तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं 1200 लूं तो D कितना होगा? 200। तो 600 अपॉन 600, 600 अपॉन 600 1, और ये होगा, ये भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। E अगर हम चेक करें तो D होगा 400। तो 6 अपॉन 8, 6 अपॉन 8 3/4, और ये हो गया 12 अपॉन 16 3/4। देखना शायद 1400 आ जाएगा। 1400 अगर d प्लस 1000 तो d मेरा हो गया 400। तो 600 अपॉन 400 प्लस 400 800, और यहां से 1200 अपॉन 1600, तो ये भी कितना होता है? 3/4, और ये भी कितना होता है? 3/4। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ई मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स। और आप देखेंगे तो ई ही हमारा था करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली जो टीएसडी के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उसी से हम बड़े स्मूथली क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो सबसे पहले उसने बोला क्वेश्चन नंबर 6 में कि टू बोट्स एट अपोजिट बैंक ऑफ रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो टुवर्ड्स अपोजिट रिवर बैंक perpendicular to the flow of the stream. They met 600 meter away from one end. Both took a break of 5 minutes after reaching the bank and then started to return back to their original river bank. They met 400 meter away from the other end on their end journey. What is the width of the river? तो कैसे किया मैंने? तो पॉइंट ए से B1 चला, पॉइंट B से B2 चला, B1 B तक जाएगा, फिर वापस A पर आएगा, B2 B से चल के A पर जाएगा, फिर वापस आएगा। पहली बार वो मिलते हैं पॉइंट M1 पर, जो था पॉइंट A से 600 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहली बात तो ये कि सर स्पीड ऑफ करंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नलीफाई, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चाहो तो उसको आप कंसिडर ना भी करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि स्पीड तो सेम है हर केस में थ्रू आउट द जर्नी। अब मैं बोल रहा हूं कि A से लेके B1 को पहली बार वो कहां मिले? पॉइंट M1 पे ले। और हम जानते हैं जब भी दो लोग एक साथ कहीं से चलते हैं और कहीं भी मिलते हैं तो वहां तक उनको आने में टाइम क्या लगता है? सेम। एंड वी नो इफ टाइम इज सेम, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो B1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की M1 तक आने में? 600 मीटर्स। B2 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की M1 तक आने में? D प्लस 400। सो अगर B1 की स्पीड S1 ले लूं, B2 की स्पीड S2 ले लूं, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन D प्लस 400। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी में सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे तो अगली बार वो कहां मिले? पॉइंट B से 400 मीटर के डिस्टेंस पर। तो M1 से लेके M2 तक का टाइम फिर से क्या होगा? सेम, और टाइम सेम है तो अगेन स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो B1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? D प्लस 400 प्लस 400 तो D प्लस 800। और B2 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 600 प्लस 600 प्लस D यानी कि D प्लस 1200। दोनों ही स्पीड का रेशियो था, दोनों को इक्वेट करा देंगे तो यहां से हम डायरेक्टली D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, D प्लस 1000 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली एक चीज और मैंने यहाँ पर आपको बताई कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करने से अच्छा था कि हम ऑप्शंस की हेल्प ले लें। मैंने ऑप्शंस की हेल्प लेकर ही आपको इस क्वेश्चन करके दिखाया था। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आज वाले सेशन में यहीं तक रखते हैं। आगे वाले सेशंस में वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।
And let's take another look of ongoing batch in Gradeup. So IM 2021 booster crash course batch 2 enrollments are on for this batch. So join this batch as soon as possible. Also prepare with India's best faculty. Join IM 2021 booster crash course now, my dear students. For any course related query you can call upon these two numbers. ये हमारे help desk के number है, तो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल न्यू वीडियोस. चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड share this session as maximum as possible with your friends within your group, my dear students. Thank you.